आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं, हम पहले समझेंगे कि व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। केशवानंद भारती इज द लॉन्गेस्ट केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन केसेस। इस केस की हियरिंग 68 डेज तक चली थी एंड द जजमेंट वाज ऑफ 703 पेजेस लॉन्ग। बट व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग इज कि इस केस में 13 जजेस की लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी एंड उन लोगों ने जजमेंट दिया 7:6 के रेशियो में, जो कि काफी ज्यादा क्लोज मार्जिन था। इस केस में पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर्स को चैलेंज किया गया एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को स्टैब्लिश किया गया। काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें ना, तो जल्दी से शुरू करते हैं। Chapter 1. Timeline of the case. In 1951, the first amendment of the Indian Constitution was passed, allowing Parliament to impose reasonable restriction on free speech. In 1967, the court overruled the Golaknath case decision, stating that the Parliament could not amend fundamental rights. In 1971, the Kerala Land Reform Act was challenged by Keshwananda Bharati. And in 1973, the Keshwananda Bharati versus State of Kerala was heard by a 13-judge bench in the Supreme Court. Chapter 2. Background of the case. The dispute was between the Kerala government and Keshwananda Bharati. इडनीर मठ की जो जमीन थी खासरोड डिस्ट्रिक्ट में, जो केरला गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था अंडर द एजिस ऑफ केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963, उस लैंड के एक्विजिशन के बाद मठ की इनकम एंड बेसिक वर्किंग अफेक्ट हुई, जिसकी वजह से द हेड ऑफ द मठ केशवानंद भारती filed a writ petition in the Supreme Court. क्योंकि केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1963 राइट टू प्रॉपर्टी को डायरेक्टली वायलेट कर रहा था, इन दोज डेज राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट। दस 1972 में अमेंडमेंट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी को एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। केशवानंद भारती केस वॉज फॉट बाय नानी पालकीवाला। द पिटिशनर स्टेटेड that this acquisition violates Article 14, Article 19F, Article 25 and Article 26 of the Part 3 of the Constitution of India, that is fundamental rights. But Supreme Court में ये ऐसा अकेला केस नहीं था। बैंक नेशनलाइजेशन केस, माधवराव सिंधिया केस, गोलकनाथ केस, इन सब केसेस में पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच में बैटल चल ही रही थी। चैप्टर 3 एनालिसिस। ये लड़ाई थी रिगार्डिंग द अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कहना ये था कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368 इट हैज द एब्सोल्यूट पावर टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द सुप्रीम कोर्ट इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थ्रू द गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस, जिसमें पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया बाय इंट्रोड्यूसिंग 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट एक्ट। अब ये अमेंडमेंट्स क्या हैं, आगे देखते हैं। 24th Constitutional Amendment Act 1971. Parliament had also given itself the power to amend any part of the Constitution of India. The 25th Constitutional Amendment Act 1972. Here the right to property had been removed by the Parliament as a fundamental right. 29th Amendment Act 1972 से 9th Schedule में केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट को अंडर एंट्री 65 एंड एंट्री 66 में डाल दिया गया, according to which now they are a part of 9th Schedule and thus cannot be reviewed by the Indian judiciary. Hence, through the case of Keshwananda Bharati, even the constitutional amendments of these nature were questioned. But सबसे serious question ये था, can the parliament also amend the fundamental rights granted by the constitution? If yes, then इस power का extent क्या होगा? Chapter 4, the judgment. On April 24, 1973, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया that parliament constitution को amend कर सकता है, but it cannot amend the basic structure of the constitution. Court के according, the word amend in Article 368 of the constitution does not mean कि amendments constitution का basic structure ही change कर सकते हैं, but what it actually means is that if parliament wants to amend कोई भी specific provision of the constitution, then such amendment would need to go through the test of basic structure. अब basic structure doctrine क्या है? Basic structure doctrine को German constitution में add किया गया था after the Nazi regime, basic laws को protect करने के लिए। In easy language, basic structure doctrine ये कहता है कि some provisions of the constitution are so fundamental कि हम उन्हें in any circumstance, any condition change कर ही नहीं सकते। And the judiciary can review the articles in 9th schedule अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेंगे इन द इंडिया पर्सपेक्टिव। इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर्स पे चल रहे डिबेट को सेटल कर दिया, एज वेल एज फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी सेफगार्ड किया।
Chapter 5 The Conclusion. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट इवन आफ्टर सो मेनी अमेंडमेंट्स एंड सो मेनी चेंजेस अभी भी इंटैक्ट है एंड केशवानंद भारती केस के जजमेंट के बाद डेमोक्रेसी की स्पिरिट अपहेल्ड कर दी गई बाय अ 13 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच. इवन दो जो मेन पिटिशनर थे वो पार्शली केस हार गए बट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. चैप्टर 6 इम्प्लीकेशन ऑफ द जजमेंट. ये केस ना इंडियन जुडिशरी के लिए एक लिटमस टेस्ट था. गवर्नमेंट ने 3 जजेस के ओपिनियन को इग्नोर कर दिया और 2 साल से कम टाइम में ही पार्लियामेंट ने फिर कोशिश की टू मेक इट्स पावर एब्सोल्यूट थ्रू 42nd अमेंडमेंट. बट इट वॉज चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट बाय ओनर्स ऑफ मिनर्वा मिल्स जो कि एक इंडस्ट्रियल फर्म थी जिसे नेशनलाइज कर दिया गया इन 1974 बाय द गवर्नमेंट. बट अगेन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वॉज रीअफर्म्ड बाय द जुडिशरी इन मिनर्वा मिल्स केस एंड वामन राव केस. तो ये थी कहानी केशवानंद भारती. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर और केसेस के सजेशंस हो तो जल्दी से कमेंट कर देना. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू LELS.